السلام علیکم جی، میں ہوں محمد بلال رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں اوپینین ایچ ڈی. اور میرے ہمراہ موجود ہیں محمد شکیل چودھری صاحب. ان سے گفتگو ہوگی، گپ شپ ہوگی. آج مختلف جو موضوعات ہیں ہمارے پاس، ان پہ بات چیت کریں گے ہم. ٹورزم کا سیزن چل رہا ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر. ٹورزم کو انڈسٹری کا نام دیا جاتا ہے آزاد کشمیر میں. جی بہت بڑی انڈسٹری ہے یہ. 3.5 کروڑ روپیہ اس ڈپارٹمنٹ کی سالانہ انکم ہوتی ہے. اور ٹورسٹ جو باہر سے آتے ہیں ان کے لیے کوئی خاص جو ہے وہ سروسز اور سہولیات تو پیدا نہیں ہو سکیں آج تک اس خطے کے اندر. سیاحتی سال بھی ہم نے منائے، اس پہ بات ہوگی. اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں کی جو رجسٹریشن ہے آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن کے پاس، وہ معاملہ بھی لٹکا ہوا ہے. 3 جو جماعتیں تھیں ماضی قریب میں انہیں جو ہے وہ انہیں کلیئر کر دیا گیا تھا، جن میں مسلم لیگ نون، کوئی فلاح انسانیت، ایک اور کوئی تنظیم بھی تھی. باقی کیوں نہیں ہوئی، اس پہ بات ہوگی. اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے آزاد کشمیر حکومت کے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں چودھری انوار الحق صاحب، یہ متحرک ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ صحت کے لیے کچھ کام ہو جائے. اور ان کے دور میں ادویات کا بجٹ بھی بڑا ہے، ہسپتالوں میں ایمبولینسز دینے کی بھی بات چیت ہو رہی ہے. باقی لیکن یہ بہت بڑا ایشو ہے، اس پہ بات ہوگی. چوہے صاحب کیسے ہیں جی؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں جناب. اللہ کا کرم. پہلی بات ہے جی ٹورزم. جی ہاں، ٹورزم میں تو سب سے بنیادی بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر اس خطے میں بہت ساری اور کمیاں تو ہوں گی، بہت ساری جس کو کہنے دکھ اور تکلیفیں بھی بہت ساری ہیں، لیکن اگر سب سے بڑی اگر کہا جائے نا کہ تساہل اور میں سب سے بڑی جس کو کہوں کرمنل ایکٹیویٹی ہے، تو یہ وہ شعبہ ہے ٹورزم کا جو کہ اس پوری ریاست کا تمام تر خرچہ اٹھا سکتا ہے. صرف ایک شعبہ، جی ہاں، وہ سیاحت کا ہے. لیکن اب اس کا عالم یہ ہے کہ یہاں پر اب اگر اس شعبے کی اپنی حالت بڑی پتلی ہے. اتنی آپ دیکھیں 3.5 کروڑ روپے آپ نے بات کی. نہیں، یہ وہ ہے جو فکسڈ، جو کچھ کرائے پہ دی ہوئی عمارتیں، باغ کے اندر ریسٹ ہاؤس، مظفر آباد، نیلم، یہ جو شاپنگ مال ہے نا چھوٹے سے اسلام آباد کا جو ایک آدھا شاپنگ مال ہے، یہ اس کی ایک دن کی آمدن اتنی ہوگی. آپ کا جو میرپور کی اگر ہم بات کریں، ہاں جی، وہاں پہ ایک رام کوٹ فورٹ سنا ہوا آپ نے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، دیکھا بھی ہوگا. وہاں پہ جائیں تو آپ کی جو ہے نا پیاس کے مارے جان نکل جاتی ہے، کیونکہ اتنا. اور اس کا ریاست کو سال کا پتہ کتنا ملتا ہے، وہ جس کو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے 2 لاکھ روپیہ. ہاں جی ہاں جی، سال کا. یہ چیزیں جو ہیں ان کو سیٹل کر کے ریاست کے لیے میرپور ڈویژن سے میرا خیال ہے کوئی ان 3 کروڑ میں نا کوئی 12-15 لاکھ روپے آمدن نہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. دیکھیں نا ہمارے جو مین پوائنٹس ہیں اور اس وقت ساری توجہ بھی اسی کے اوپر ہے، جیسے نیلم ہے، ڈیپا ہے، یہ جو علاقے ہیں. لیکن وہاں پہ حال کیا ہے؟ اچھا، واش روم نہیں ہے وہاں. نہیں، واش روم تو بہت دور کی بات ہے. جو ٹرانسپورٹیشن کا جو سارا وہاں پہ نظام ہے، جس طرح کی گاڑیاں وہاں پہ استعمال ہو رہی ہیں، اب آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے وہ حساس علاقہ ہے. ظاہر جگہ جگہ چیکنگ ہوتی ہے جو کہ ہونی بھی چاہیے. ظاہر ہے کہ کچھ پتہ تو کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا کیا ہے، لیکن ایک گاڑی ہے جو کہ 5 بندوں کو لے کے جانے کے لیے، اور وہ بنی ہے 70s کی دہائی میں، وہ ختم ہو چکی ہے، اپنی طبعی عمر پوری کر چکی ہے، اور اس کے اندر الٹریشن کر کے اس کے اوپر 15-20 افراد سوار ہیں، اور 15-20 افراد سے زیادہ ٹنوں کے حساب سے، منوں کے حساب سے نہیں، ٹنوں کے حساب سے اس کے اوپر سامان وہ بھی الگ سے ہے. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اکثر میدانی علاقوں سے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ ٹورزم کے لیے. جو سڑکوں کا حال ہے، میں کہتا ہوں کہ چودھری مجید صاحب کی حکومت میں غالباً یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو نئی سڑک بنے گی اس کا جو شولڈر ہے وہ کنکریٹ کا بنے گا. لیکن جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ آپ کو کوئی رکاوٹ ہو، چلے کوئی کسی طریقے سے گاڑی کہیں پہ ہٹ ہوتی ہے تو وہ تھوڑی سی بچت ہو جائے. آپ وہ ایک جس کو کہیں کہ نیلم جانے والی سڑک، میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ موت کا راستہ ہے. وہ موت کا راستہ اس طرح ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیچے بے شمار نیچے بہت دور دریا بہ رہا ہے، گہری کھائی ہے، پہاڑ ہے، پہاڑ سے پتھر گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. اور آپ کی ذرا سی گاڑی جو ہے دائیں بائیں ہوئی اور آگے سے اگر سپوز کراسنگ ہوئی، یا جیسے کہ یہ بکروال گاڑیاں یہ لے کے اپنا جانور لے کے گزرتے ہیں، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ دریا کی طرف اپنا جانور نہیں کرتے، وہ پہاڑ کی طرف کرتے ہیں. دریا کی طرف سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. اور جیسے تھوڑا سا، کیونکہ یہاں میدانی علاقوں کے لوگوں کو وہ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے پہاڑی علاقے میں گاڑی کیسے چلانی ہے. ہم بار ہو جاتے ہیں اوور سپیڈ. پاسٹ میں دیکھیں ملتان کی فیملی جاتی ہے وہاں پہ 7 لوگ ایک ہی خاندان کے گئے. میں کہتا ہوں وہاں پہ جو ایک باپ لاہور سے ایک فیملی جاتی ہے اور وہ ان کا
का बच्चा दरिया में गिर जाता है, वो दोनों मियाँ बीवी चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता, ये तो हाथ से काम लाहौर से एक नया नवेला जोड़ा जाता है, वो गाड़ी दरिया में गिर जाती है। लवात का एक पूरे देख रहे पूरे 15-16 लोग जो थे जी वो लुकमे अजल बन गए। इसके बाद ये थोड़ी सी आंखें खुली, आज वहां पे वो जो वजीर इत्तलात हैं पीर मजहर सईद, उनकी मरने पे क्यों आंखें खुलती हैं, लोगों के मरने पे क्यों आंखें खुलती हैं? क्या पीर साहब को नहीं पता? पीर साहब उस इलाके के नहीं है। उन्होंने एक तजवीज रखी थी कि यहाँ पे नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो हैं उनकी इजाजत दे दी जाए। क्या बना उस तजवीज का? कुछ करें, बजाय ये कि इससे पहले कि लोग सैकड़ों की तादाद में मर जाएं। लोग क्या करते हैं देख रहे हैं, हादसात को नए तो है नहीं है ना, अब तो डिजिटल मीडिया आ गया तो ज्यादा सामने हादसात होते रहे। नहीं देखें जी, इससे पहले देखें अभी क्या हो रहा है, वहां पे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर वीकेंड के ऊपर लाइन लग जाती है। अब जो है मुहर्रम है, अब आपको छुट्टियां हैं, ज़्यादा लोग, आपको पता है छुट्टियों पे लोग चले जाते हैं, लोग गाड़ियों में सोने पे मजबूर हैं, सड़कों पे सोने पे मजबूर हैं, किसी किस्म का वहां पे चलो ठीक है, हम कहते हैं आप एकदम मुआवजे नहीं कर सकते, वो यार ये तो काम कर सकते हैं, ये हो जाता है जो गाड़ियां प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से भी नहीं जी, जो गाड़ियां अपनी तबई उम्र पूरी कर चुकी हैं, सबको जहां पे ओवरलोडिंग होती है, आप ये दो चीजें तो चेक कर सकते हैं ना, आप खुदारा इनको चेक कीजिए। नहीं तो ये कोई बड़ा इशू तो नहीं है ना, आपने जैसे कहा है कि पूरी रियासत का खर्चा ये एक शोबा उठा सकता है, एक शोबा। मैं ये कहता हूँ गारंटी के साथ कहता हूँ लोगों को, ये जैसे पोटेंशियल है एजेके के अंदर 45,000 मेगावाट बिजली पैदा करना, चले हम आइडल को छोड़ते हैं, हम टूरिज्म की बात दुनिया के अंदर आपका केपीके का टूरिज्म कितना महफूज है। हाँ जी, अब इस करदू में सिर्फ एक वाकया होता है, वो भी पत्थर लगने से 3 टूरिस्ट हैं जो दरिया में गिर जाती है गाड़ी, लेकिन आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो टूरिस्ट ये जानता है या जो लोग ये जानते हैं कि नीलम का जो सड़क का सफर है इंतहाई खतरनाक है, बहुत ज्यादा, वो मौत की तरफ का सफर है, बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है लोग नहीं जाते। नहीं, आप एक बात हैरान रह जाएंगे आज जान के, मैं नीलम नहीं गया हुआ आज तक। नहीं, मैं भी नहीं गया हुआ। मैं उसके जो मेरी मेन रीजन है वहां ना जाने की, वो ये है कि वो सफर महफूज नहीं है, वो सड़कें महफूज नहीं है। ये शोल्डर खड़े करके साइड स्पोर्ट्स देके पूरी दुनिया के अंदर हाल निकल आए हैं ना, या तो हाल ना हो। ये तो फिर देखिए आपके तरक्याती प्रोग्रामों की बातें है ना, कि ये आप करेंगे जो आप फौरी इकदाम कर सकते हैं ना, हम कहते हैं जो फौरी इकदाम कर सकते हैं इस मौजूदा रश को देखते हुए, कि आप कोई गाड़ी जो कि अपनी जो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं पास, जिसके पास नहीं है, उसको बंद कर दें। दूसरा यह है कि जो ओवरलोडिंग करते हैं आप उसको चेक कर लें। तीसरे नंबर पे आप अपनी सड़कों की सूरत हाल ठीक करें, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें। लेकिन जबानी जमा खर्चा हाथ से होते हैं और हम उठ खड़े होते हैं, हमारे अदारे, हमारे जिम्मेदार, पॉलिसी साज, और जहां पे चेकिंग होती है, जहां पे चेकिंग होती है वहां पे खुदारा लोगों को बताएं कि वहां पे आप स्पीडिंग ना करें, कानून साजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप नहीं, क्या बिगाड़ लेगा हुकूमत या कोई अदारा जिसने ओवरलोडिंग की, उस पे जुर्माना ना, आपके पास ट्रैफिक रूल्स में जुर्माना कितना बहुत बड़ा होगा, मेरा 500 रुपया। टेस्ट केस में आपको बताता हूँ बिलाल, आप में से कोई, आप सब में से किसी को भी, सबको चैलेंज है, आप देखिए आजाद कश्मीर के जितने एंट्री पॉइंट्स हैं कोहाला समेत, आप वहां पे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो वहां पे गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस बने हुए हैं, या जो उनके इंफॉर्मेशन डेस्क बने हुए हैं जी, आप देखें वहां पे कितने लोगों की तैनाती कितने लोगों की है, मौजूद कितने हैं, और रोज वो दफातर खुलते हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक उनमें से 90% दफ्तर जो हैं वो बिल्कुल बंद रहते हैं, वहाँ पे कोई बंदा नहीं होता, बंदे की ज़ात नहीं होती। बाहर से कोई बंदा आएगा तो वो आपसे पूछेगा, मुझसे पूछेगा, सरफराज से पूछेगा कि जनाब मैंने किधर जाना है, ये किधर है, किधर है। लोग आके कई दफ़ा पासपोर्ट लेके आते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर में आ रहे हैं, क्या हमें पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, लोगों को इत्तलात ही नहीं है। और जो टूरिज्म के दफातर हैं, पूरी एक गवर्नमेंट के इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। आप भूल जाएंगे अपने मुनाफे को, तरक्याती फंड। लेकिन याद रखिएगा ये 5 साल मंसूबा देना पड़ेगा इस पे, 5 ईयर प्रोग्राम ऑन टूरिज्म, एक उसको मैनेज करना है। एक है फौरी तौर पे करने वाले काम और एक है लॉन्ग टर्म काम। फौरी तौर पे हम तैयारी नहीं करते ना, जो सब हमारे पास लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, हम शॉर्ट टर्म पे काम करते हैं, हम आदी हो गए। एक बंदा पॉलिसी लेके अगर आज अनवारुल हक साहब पॉलिसी देके जाएंगे, जो आने वाला है वो सारे सेटअप को चेंज कर देगा, वो अपना दिमाग देने की कोशिश करेगा, वो अपने आइडियाज देने की कोशिश करेगा। जिद में यहाँ पे चीजें नहीं हो पा रही, बस वो बयान हमारे, हम लोग बयान और क्रेडिट ना चला जाए किसी, ये भी बहुत बड़ा खतरा है ना। हम लोग बयान और टिकर पे चलते हैं ना, बयान और टिकर की जो मियाद होती है वो चंद घंटे, लेकिन अभी कुछ काम करने पड़ेंगे जो मैं समझता हूँ कि हमेशा की तरह आज भी हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, होना कुछ नहीं है इस पे। अल्लाह करे कि लोगों की आंखें खुले, इतने लोग मर गए, इतने
मासूम नहीं, लोगों लेकिन की इस पे जाने देखे ना जा रही भाई, है। मैंने कहा ना इस पे प्रोग्राम की जरूरत है, पूरी प्लानिंग, पूरी रियासत आपकी इकट्ठी होगी, बैठ गए लोग सर जोड़ के, सुबह मीटिंग है, डे में मीटिंग है, तमाम आप अपने दिमाग रियासत के इकट्ठे कर लिए आपने, जनाब आ जाएं, क्या किया जाए, इसको कहते हैं सीरियस मूव। हाँ जी। वो नहीं होती हमसे। उन्हें जी देखे ना वजीर आजम ने क्या किया था कि बेशुमार इस पे एक इजलास हुआ है, ये क्रेडिट दे दें प्राइम मिनिस्टर को, हाथ से पहले भी होते रहे। एक उन्होंने इजलास किया फौरी, वो मुजफ्फराबाद थे, सीएस उसमें मौजूद था, चीफ सेक्रेटरी भी, बाकी वुजरा भी मौजूद थे, कुछ और भी जो मुतलकीन थे वो मौजूद थे। ये जो एक्शन हुआ है ना आज मुजफ्फराबाद, अगर सारे काम अगर वजीर आजम नहीं करनी है तो फिर ये महकमे किस मर्ज की? नहीं, ये महकमे, यहाँ पे बड़े बड़े सेक्रेटरीज हैं जो वो भी बड़े, ये कोई पूछे जाके प्राइम मिनिस्टर से, आप देखिए ये जब आप कोई प्राइम मिनिस्टर से पूछेगा यार कैसे आप काम करवा रहे हो, मतलब कि देखें इन लोगों से। देखें वजीर आजम के बारे में अमूमन यही कहा जाता है ना जी कि आम लफ्जों में कि जी बहुत ज्यादा डांटते हैं जी, बहुत ज्यादा जो है ना वो कहते हैं जी, लोगों को कहते हैं आप गलत काम कर रहे हैं, गलत हुए। और जब बंदे को गुस्सा आता है ना हर तरफ, जब आपके पास गलत हो रहा हो तो आपकी मशीनरी ठीक ना हो, बहरहाल चले, ये एक होप है। प्राइम मिनिस्टर साहब हमें यकीनन देख रहे होंगे, तो इस पे जो है कि एक्शन लेने की जरूरत है और इस पे एक प्रोग्राम देने की जरूरत है, हमारी तजवीज़ ये है। अब आ जाइए जी, ये जो आपको एक और खबर दूं, ये सियासी जमातों की जो रजिस्ट्रेशन का मामला था, जो गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हाई कोर्ट के हुक्म पे दोबारा से रजिस्ट्रेशन हो रही थी सियासी जमातों की, और बड़ी बदकिस्मती ये थी कि जमहूरियत के नारे लगाने वाली सियासी जमातें, अवामी हकूक के नाम पे रैलियां निकालने वाली सियासी जमातें, और जिनमें बेशतर जमातों का जो था वो उनका रुख जो होता था वो मुजफ्फराबाद की तरफ था ना, कुर्सी। तो इन सियासी जमातों ने ये किया कि इनके पास जो एक्ट है उसके मुताबिक इनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं थी पूरे, मतलब जो डेमोक्रेसी होती है ना, विद इन पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, या आपने जमात को चलाना है पूरा काम कारकुन की, पूरा एक नज़्म अच्छा, हम होता है। उसको कैसे करते हैं, हम ले लेते हैं बरतानिया की मिसाल, आपको पता है ना, पेड मेंबर होता है, वो जो डिस्ट्रिक्ट का, सिटी का या काउंसलर का उम्मीदवार भी है, वो एक वोटिंग होती है पहले विद इन पार्टी के, ये कैंडिडेट होगा, ऐसे ही है जो सब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं ऐसे ही होता है ना डेमोक्रेसी के अंदर। फिलहाल बात यह है कि आप चले बरतानिया की मिसाल, हम लोग कहते हैं चलो ठीक है उनके पास तो सारे सिस्टम नहीं, लेकिन चले हम इसलिए देते हैं कि हमारा वहाँ ज्यादा वहाँ मतलब कि कुछ यहाँ पे वो कोई यार कुछ तो बेसिक चीज करो ना। अच्छा, वो जमातों ने किया कि को कहने का हमारी जमातें वो खाली डिब्बे अच्छा खत लिख रही है इलेक्शन कमीशन बार बार, कागज पूरे करो, कागज पूरे करो। मुझे आज मेरी किसी कागज कैसे पूरे करें जनाब, मेरी जो है अच्छा फंडिंग जो है मेरी लीडरी को फर्क पड़ जाएगा अगर मेरे कागज पूरे करवाएंगे तो मेरी लीडरी को फर्क पड़ जाएगा। मैंने जो दूसरों के सरों पे हुकूमत की हुई है मैं वो सारी खत्म कर जाऊंगा, मेरी फिर लीडरी कहाँ जाएगी? अच्छा वही होता है ना, किसी को मेंबर मजलिस आमला बना दिया डायरेक्ट, तुम नायब सदर हो, तुम फलाओ। विद इन पार्टी भी ऐसा नहीं होता, जो पार्टी का ढांचा है या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पॉलिटिकली, उसमें तो इलेक्शन होते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। चले जो भी हुए जैसे हुए वो हो गए, उस पर भी हमने बात की थी। खत लिखे जा रहे इलेक्शन कमीशन, तो 3 पार्टियां जो कन्फर्म हुई माजी करीब में, जिनमें मुस्लिम लीग नून थी, फला इंसानियत या और तंजीम, अभी ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पे क्लियर हुई है, ना पीटीआई एजेके की, ना जमात इस्लामी की, ना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, और जमातें भी उसमें हैं। तो ये मामला अभी तक लटका हुआ है। बिल्कुल। अभी पाकिस्तान में एक नया जो है वो इशू पीटीआई पे पाबंदी का जो ऐलान है वो वजीर इत्तलात ने कर दिया है। अब चूंकि वहाँ पे जो दफा है ना इलेक्शन एक्ट की, वहाँ पे 212 के तहत पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही अमल करना पड़ता है। जो आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन एक्ट है जो 21 का, उसकी दफ़ा 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि पीटीआई एक तो अभी हवा में ऑलरेडी है जेके के अंदर, अब पाकिस्तान में उन पर पाबंदी अगर आयद हो जाती है सुप्रीम कोर्ट से भी, तो फिर आज़ाद कश्मीर में जो पीटीआई के लोग हैं उनका फ्यूचर क्या होगा? फिर उन रिकमेंडेशंस की रोशनी में आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत को भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भेजना पड़ सकता है कि इस सियासी जमात पे भी पाबंदी लगाई जाए। अभी वो री रजिस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं एजे के इलेक्शन कमीशन के। देखिए बात यह है कि यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान तो एक ज़ाहिर है कि कौमी सतह का सारा मामला चल रहा है ना वहाँ पे, तो इस वक्त बेशुमार अफरा तफरी का आलम है, जो भी सूरत हाल वहाँ पे चल रही है। आज़ाद कश्मीर एक बहुत सारी छोटी सी सूरत हाल है, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा होता है कि जो भी पाकिस्तान की सूरत हाल होगी उसका असर यहाँ पे जी डेफिनेटली ऐसा होता है। अच्छा अब आखिरी शार्ट सा करेंगे, प्रोग्राम का टाइम भी आगे निकल गया है। वो बेसिकली हेल्थ के ऊपर प्राइम मिनिस्टर काम करना चाह रहे हैं। असल में एक बहुत बड़ा अहम इजलास हुआ है वज़ीर आज़म की सरबराही में महकमा हेल्थ के हवाले से, जिसमें ये कहा गया है कि जो अस्पताल हैं उनको एक तो साजो सामान दिया जाएगा, दूसरा जो है वहाँ पे स्टाफ की कमी
स्टाफ की कमी को, डॉक्टरों की और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर किया जाएगा। अब इस सिलसिले में देखें आप, सीधी सीधी बात है, आप कैसे कमी दूर करेंगे? हम लोग ज़रा वक्त कम है, सिर्फ एक तजवीज़ रखना चाहेंगे और ज़रा के अरबाब इख्तियार को भी पता होगी, जब तक आप दूर दराज के इलाकों में कोई डॉक्टर जाने को तैयार नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ का बंदा जाने को तैयार नहीं है, हाँ इस सूरत में तैयार हो सकता है कि आप ये जो वहाँ पे जॉब है, जहाँ पे वहाँ पे मुलाजमत है, उसको आप इंसेंटिव बेस बना दें। वहाँ पे आप ऐसे इंसेंटिव रख दें, आप ऐसे स्पेशल अलाउंसेस रख दें कि जब मुझे ये पता होगा कि जनाब मुझे शहर में काम करते हुए, मुजफ्फराबाद में काम करते हुए बीइंग ए डॉक्टर मुझे 1.25 लाख मिल, वही जो इंसेंटिव्स पूरी दुनिया में दिए जाते हैं। देखिए जी, मैं ये कहता हूँ, देखें ना, तजवीज़ सिर्फ ये है रखनी चाहिए। दो छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप ये जो दूर दराज इलाकों में पोस्टिंग्स हैं, इनको इंसेंटिव बेस्ड कर दें, नंबर एक चीज। दूसरा ये है कि जब डॉक्टर या इस तरह के लोग जब जाते हैं ना शहरों से उठ के दूर दराज इलाकों में, उनका सबसे बड़ा मसला क्या होता है, वो कट जाते हैं। अगर हुकूमत ये काम करे कि जिस तरह के हम लोग ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, इस तरह का कोई नेटवर्क एसईओ के ताउन से कुछ इस तरह की चीजें दे दें कि ताकि ये लोग जुड़े रहें, क्योंकि डॉक्टर्स आजकल सिर्फ MBBS होना जो है ना वो कोई बड़ी बात नहीं होती, ये अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं अपनी जो। लेकिन ये भी एक अच्छी आपका मशवरा है, अगर जिम्मेदार इस पे को, ताकि वो जब बंदा दूर दराज इलाके में जाए खुश होकर जाए, उसको पता है कि यहाँ पे बैठ के मैं सुकून भी है और लोगों के साथ कांटेक्ट भी हूँ, और यहाँ पे मुझे 1 लाख का 1.5 लाख मिल रहा है या 1.5 लाख का मुझे 2.5 लाख मिल रहा है, तो ज़रा हंसी खुशी लोग जाएंगे। इंसेंटिव बेस्ड रखें और वहाँ पे जो उनकी कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है उसका कोई सिस्टम बना दें, सारे लोग हंसी खुशी जाएंगे। ठीक है जनाब जी साहब, बहुत शुक्रिया। अब ये हुकूमत पे है, वो आपकी बात मान जाएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मोहम्मद शकील चोई साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। You are watching Opinion HD.